Hare Nama Hare Nama Eva Kevalam Kalo Nasteva 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 Gatiranyata Hare Nama Hare Nama Eva Kevalam Kalo Nasteva 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 Gatiranyata पठन कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम के दूसरा स्कंद दूसरा अध्याय, जिसका शीर्षक है हृदय में भगवान, और श्लोक संख्या जो आज मुझे दी गई है वो है 26। तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। तो श्लोक इस प्रकार से है, अथो अन्यस्य मुखालेन धन्द यमानं स निरीक्ष्य विषयं निर्याति सिद्धेश्वर युस्तदिश्यं यद् द्वै पराध्यनं तत्तु परमेष्ठ्यम्। Translation: At the time of devastation of the complete universe, the end of duration of Brahma's life, a flame of fire emanates from the mouth of Ananta, from the bottom of the universe. The yogi sees all the planets of the universe burning to ashes, and thus he leaves for Satyaloka by airlines used by the great purified souls. The duration of life in Satyaloka is calculated to be 15,480,000,000 years. Purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada, Jai Srila Prabhupada. It is indicated herein that the residents of Maharloka, where the purified living entities or demigod possesses a duration of life calculated to be 4,300,000,000 solar years, have ashes by which they reach Satyaloka, the topmost planet of the universe. In other words, the Srimad Bhagavatam gives us many clues about other planets far, far away from us, which modern planes and spacecrafts cannot reach even by imaginary speeds. The statement of Srimad Bhagavatam are accepted by great acharyas like Sridhar Swami, Ramanujacharya, and Vallabhacharya. Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu specifically accepted Srimad Bhagavatam as spotless Vedic authority, and such no sane man can ignore the statement of Srimad Bhagavatam when it is spoken by a self-realized soul, Sri Sukadeva Goswami, who follows in the footsteps of the great father, Srila Vyasadeva, the compiler of all Vedic literatures. In the creation of the Lord, there are many wonderful things we can see with our own eyes every day and night, but we are unable to reach them equipped by modern materialistic science. We should not therefore depend on the fragmentary authority of the materialistic science and knowing things beyond the range of scientific purview. For a common man, both modern science and Vedic wisdoms are simply to be accepted. From this point onwards, is जो तात्पर्य में जो बातें बताई गई, from here onwards is very, very important. Just have, for a common man, both modern science and Vedic wisdoms are simply to be accepted because none of the statements, either by modern science or of Vedic literature, can be verified by him. The alternative for a common man is to believe either in both of them. The Vedic way of understanding, however, is more authentic because it has been accepted by the acharyas, who are not only faithful and learned men but also liberated souls without any of the flaw of the conditioned souls. The modern scientists, however, are conditioned souls liable to so many errors and mistakes. Therefore, the safe side is to accept the authentic version of Vedic literatures like Srimad Bhagavatam, which is accepted unanimously by the great acharyas. Hare Krishna.
ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते जयप्रदाय स्वामिने नमः। पादाय विदायकपादाय और कथाधाम दयानगर ग्रंथारण्य नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। We start the class, okay. तो यहाँ पर इससे पहले के जग अगर थोड़े जो तात्पर्य हैं, तो यहाँ पर शीर्षक पहले क्या है, हृदय में भगवान। तो जो पहले के कुछ तात्पर्य हैं उनमें से कुछ पॉइंट्स जो पढ़ने लायक हैं, पढ़ने समझने लायक हैं, तो उसको जरा एक बार देख लेते हैं। तो श्रील प्रभुपाद अपने पहले वाले तात्पर्यों के अंदर बताते हैं कि जो उच्च स्तर पे जो लोग हैं, उन लोगों के अंदर इतनी सारी फैसिलिटीज होती हैं, इतने सारे जो है प्रबंध होते हैं, इतने सारे सुख के साधन होते हैं जो, और वो उनकी गणना, उनकी जो काउंटिंग कैसे की है, वो हजारों के अंदर है। मतलब इट इज फार मोर देन मटेरियल एंजॉयमेंट व्हाट वी आर एंजॉयिंग हियर इन दिस मटेरियल वर्ल्ड। तो इन जो हम इस भूलोक के ऊपर हम लोग जो आनंद उठाते हैं, जो हमको लगता है कि ये सब साधन है जिससे हमको आनंद प्राप्त होगा और सुविधाएं प्राप्त होंगी, उससे हजारों गुना ज्यादा जो है ऊपर के लोगों के अंदर है। तो वहां पर जैसे बताते कि महर्लोक और उसके ऊपर के जो लोग हैं, वहां पर उन लोगों को 8 सिद्धियां, जो 8 फोल्ड सिद्धियां हैं, तो उनको ऐसे ही प्राप्त हो जाती हैं। जैसे हम यहाँ पर जो धरातल पे देखते हैं कि अगर कोई बच्चा पैदा होता है तो हमको उसको सिखाना नहीं पड़ता, वो अपनी जैसे समय जब संग में रहता है तो समय के साथ साथ वो अपने आप चलना, पहले तो रेंगना, उसके बाद में चलना, उसके बाद में जो है बोलना, ये सब अपने आप सीखता है, उसको सिखाना नहीं पड़ता। तो ठीक उसी तरह इन लोगों के अंदर जो ऊपर के जो लोग हैं, महर्लोक और उससे ऊपर के जो लोग हैं, उनके अंदर इन सिद्धियों को उसके लिए अलग से प्रयास नहीं करना पड़ता। वहाँ अपने आप ही जो है अष्ट सिद्धियां, जैसे अनिमा है, लघिमा है, उसके बाद में प्राप्ति सिद्धि है, फिर महिमा है, उसके बाद में इष्टिवा सिद्धि है, उसके बाद में वशिष्ठवा सिद्धि है, उसके बाद में प्रकाम्य सिद्धि है और कामवास्य सिद्धि है। इन सब सिद्धियों के 8 सिद्धियों के वो अपने आप उनके पास रहती है, उसके लिए उनको कोई अलग से प्रयास नहीं करना पड़ता। तो यहाँ पर फिर आगे वाले एक तात्पर्य के अंदर श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि जो अध्यात्मवादी है, जिसको बोलते हैं लेस इंटेलिजेंट ट्रांसेंडेंटलिस्ट, जिस तरह हम जो यहाँ पर भूलोक के अंदर रहने वाले, हम बोलते हैं कि हम लोग प्रयास करेंगे, हम लोग कोशिश करेंगे, हम थोड़े ऊंचे वाले लोगों में, जैसे हम स्वर्ग लोक में जाके देखें उनके पास क्या है, क्या फैसिलिटीज है। और लोग यहाँ पर भी वो प्रयास करते हैं कि हम प्रयास करके स्वर्ग लोक जाए, जैसे उनको स्वर्ग के अंदर जाके उसका भोग करना है। मतलब जो पुण्य कमाते हैं, वो उनका उद्देश्य यही होता है कि हमको स्वर्ग में जाना है। और अमूमन जो लोग हैं वो यही बात करते हैं कि हमको स्वर्ग में जाए। और जो लोग यहाँ पर हैं, अगर उनकी कोई मतलब रिलेटिव्स की डेथ हो जाती है तो वो प्रार्थना करते हैं भगवान उसको स्वर्ग में जगह देना, मगर उनको पता नहीं है, क्योंकि वो अज्ञान है, अज्ञान के अंदर है, तो उनको पता नहीं है कि भाई स्वर्ग से भी उनको वापस आना पड़ेगा। तो ठीक यहाँ पर भी बता रहे हैं श्रील प्रभुपाद अपने तात्पर्य के अंदर, जो लेस इंटेलिजेंट ट्रांसेंडेंटलिस्ट है, जो अभी उस पद के ऊपर है, तो वो थोड़े उन्नत तो हुए हैं, मगर उनको क्या है, उनको अभी भी वो इच्छा है कि जो ऐसे लोग हैं जो जहाँ पर इतनी सारी सिद्धियां हैं, तो उसका अनुभव करना है, तो ऐसे लोग फिर वहां पर जाते हैं। मगर जो योगी, श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि योगी जो है अपनी इन इच्छाओं को अपने आप इसी भौतिक शरीर के अंदर से वो प्राप्त कर सकते हैं और किसी भी लोक के अंदर वो जा सकते हैं। तो वो श्रील प्रभुपाद इसके अंदर बताते हैं, मगर डिवोटीज ऑफ द लॉर्ड are not ambitious to dominate a false। मगर ये जितनी भी सिद्धियां ऊपर के लोगों के अंदर हैं, अष्ट सिद्धियां जैसे बताते हैं, तो उन सिद्धियों को प्राप्त करने से उसके अंदर जो एक भक्त रहता है, भगवान श्री कृष्ण का जो भक्त रहता है, उसको इसमें इंटरेस्ट नहीं होता, क्योंकि वो पता है कि ये सब सिद्धियां जो है वो क्या किसी के ऊपर अपना दायित्व जमाने की बताना है कि देखो मैं ये कर सकता हूँ। और जिस तरह हम ये भौतिक जगत के अंदर देखते हैं कि लोग जो है इस
भूतल के ऊपर जितनी भी सारी भगवान के दी हुई जो हमारे पास सुविधा है उसका जो है भोग करना चाहते हैं, उसको यूटिलाइज करना चाहते हैं और उसको जो है एक्सप्लॉइट करते हैं। मगर जो ऐसे ही मतलब जो भक्त है वो भक्त कभी सोचता नहीं है, भक्त नहीं कहता, भक्त कहता है जो भी चीजें यहाँ पर हैं, जो भी वस्तुएं हैं, मुझे भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लगाना है। तो ये जो है एक शुद्ध भक्ति के लक्षण होते हैं। विद द मटेरियलिस्ट माइंड वन कैन रीच द बेस्ट प्लैनेट। अगर आपकी जो भौतिक इच्छाएं हैं और भौतिक मन की जो आपकी कामनाएं हैं वो क्या है, भगवान के जो अच्छे से अच्छे जो लोग हैं उसमें आप जा सकते हो, मगर भगवान के पास आप नहीं जा सकते हो, क्योंकि भगवान के पास जाने के लिए आपकी जो इंद्रियां हैं वो शुद्ध होनी चाहिए। और शुद्ध इंद्रियां होने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको पहले तो जो जितनी भी आपकी इंद्रियां हैं भगवान की सेवा में लगाना पड़ेगा। और भगवान की सेवा में प्रेम पूर्वक अपनी इंद्रियों को लगाने से हमारी जो है इंद्रियां शुद्ध होती है। जब तक ये शुद्ध नहीं होती तब तक हम उस लोक में नहीं जा सकते। तो इन इंद्रियों को शुद्ध करने के लिए मतलब श्रीमद् भगवत गीता के अंदर 5वें अध्याय का 70वां श्लोक 5.17 के अंदर क्लियरली बताया गया है कि उसका मैंने एक्रोनिम बनाया था जो मैंने पहले भी शेयर किया है, जो है फर्म, FIRM। तो उसके अंदर उस श्लोक में बताया गया है कि आप आपका फेथ, आपका इंटेलिजेंस, आपका रिफ्यूज और आपका माइंड, ये 4 चीजें फर्म FIRM, F stands for faith, I stands for intelligence, R stands for refuge और M stands for mind। ये 4 चीजें जब आप पूर्ण रूप से भगवान की सेवा में लगाओगे, जब ये 4 चीजें आप पूर्ण रूप से भगवान की सेवा में लगा दोगे तो क्या होगा, तो उस श्लोक के जो अगर श्लोक को ध्यान पूर्वक पढ़ेगा तो उसमें लिखा हुआ है कि वो आपके हृदय के अंदर जितने भी कलमश हैं, जितने भी आपके हृदय के अंदर वो कलमश कौन से हैं, तो उसका एक्रोनिम है पेज इल, द इल पेज, यानी जो बीमार पन्ना अपने जीवन का कौन सा है, तो वो पेज इल। द इल पेज इज व्हाट इज प्राइड, एंगर, ग्रीड, एनवी, इल्यूजन एंड लस्ट। तो ये जो 6 प्रकार के जो हमारे अनर्थास हैं वो पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएंगे। तो इन 6 चीजों को जब आप पूर्ण रूप से समाप्त करोगे तब आपको भगवान के हृदय में जो भगवान बैठे हुए हैं उनके साथ में आपका संपर्क स्थित होगा और आप जो है आगे प्रगति कर सकते हो। तो यहाँ पर जो श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि जब तक ये इन सेंसेस को हम लोग पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं करेंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। फिर श्रील प्रभुपाद अपने उदाहरणों के अंदर बताते हैं कि जैसे नारद मुनि थे, नारद मुनि तो किसी दुर्वासा मुनि कैसे भी वो ऐसे मिस्टिक थे और मतलब नारद मुनि ऐसे भक्त थे जो भगवान के, तो किसी भी लोक के अंदर बिना किसी रोक टोक के वो जो है भ्रमण कर सकते थे। तो अभी जो आज का श्लोक है, आज के श्लोक के अंदर जो बहुत महत्वपूर्ण बात है, जैसे मैंने जब तात्पर्य पढ़ रहा था तो मैंने उस पर इंडिकेट किया था, तो वो क्या है, तो यहाँ पे श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि अगर फॉर अ कॉमन मैन बोथ मॉडर्न साइंस एंड वैदिक विजडम्स आर सिंपली टू बी एक्सेप्टेड बिकॉज नन ऑफ द स्टेटमेंट्स ईदर ऑफ मॉडर्न साइंस और वैदिक लिटरेचर कैन बी वेरीफाइड। तो मतलब जो साधारण मनुष्य है, जो साधारण जीव है इस भूलोक के ऊपर, उसको दोनों को साथ में लेके चलना पड़ेगा, साइंस को भी और साथ साथ में जो है जो शास्त्रों के अंदर जो ज्ञान, जो बुद्धिमत्ता की जो बातें बताई गई है उसको साथ साथ में लेके उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, उसको उसका अनुभव करना पड़ेगा और उसको जैसे है वैसे उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो क्यों श्रील प्रभुपाद यहाँ पर फिर उसका देखो स्टेटमेंट के अंदर कितनी अच्छी तरह से बता देते हैं, क्योंकि वेरीफाइड, सत्यापित यानी टू वेरीफाई, उसको वेरीफाई करने के लिए एक मिनट उसको वेरीफाई करने के लिए उसके पास कोई साधन नहीं है, तो वो उसको क्या है, उसको दोनों को बिलीव करना पड़ेगा। मगर फिर श्रील प्रभुपाद वेरी स्पेसिफिकली बताते हैं द वैदिक वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग हाउ इज मोर ऑथेंटिक, यानी अगर किसी चीज के ऊपर ज्यादा भरोसा किया जा सकता है और ज्यादा जिसको हमको मानना चाहिए तो वो क्या है, वो वेदों के अंदर जो हमको ज्ञान मिलता है, वेदों के माध्यम से हमको जो ज्ञान मिलता है उसके ऊपर हमको ज्यादा भरोसा करना चाहिए। क्यों? फिर श्रील प्रभुपाद उसका कारण भी बताते हैं, क्योंकि जो है हमारे आचार्य हैं वो एकदम फेथफुल हैं, पूर्ण रूप से हमको उन पर विश्वास होना चाहिए, क्योंकि वो ज्यादा ज्ञानी हैं और वह मुक्त मतलब जीवात्माएं हैं और उनके जो आचरण के अंदर कोई भी त्रुटि नहीं है। तो मॉडर्न साइंटिस्ट हाउएवर अ कंडीशन सोल, क्योंकि जो
जो आजकल के वैज्ञानिक हैं वो पूर्ण रूप से जो है मतलब जो, क्योंकि वो आध्यात्मिक स्तर पर नहीं है, वो भौतिक स्तर पर हैं, तो उनके अंदर उनके जो कैलकुलेशंस के अंदर हम हमेशा देखते हैं कोई ना कोई मिस्टेक्स आती है। कभी कोई कहता है कि भाई जैसे हम उदाहरण देखते हैं कि कोई फिजिकल एक्सरसाइज के अंदर जब कोई बोलते हैं कि पहले कहते थे कि भाई जॉगिंग बहुत अच्छी है, बाद में बोलते हैं जॉगिंग करने से तुम्हारे एंकल्स के अंदर प्रॉब्लम आता है, तो बोलेगा अभी जॉगिंग मत करो, ब्रिस्क वॉकिंग करो। जब ब्रिस्क वॉकिंग करने किसी ने स्टार्ट कर दिया तो दूसरा एक आया, उसने बोला नहीं ब्रिस्क वॉकिंग करोगे तो ये रिसर्च बताते हैं कि आपके काफ के मसल्स जो है वीक हो जाते हैं, तो ये दूसरा आ गया। तो एवरी नाउ एंड देन जो वो अपनी ही बातों को नकारते हैं, अपनी ही बातों को, एक नया आएगा तो वो नया कोई सिस्टम ले आएगा और वो उसकी जो महानता के बारे में बताएगा, फिर दूसरा आएगा तो बोलेगा नहीं वो गलत है, मैं सही हूँ, इसका पर रिसर्च करते हैं। तो ऐसे जो चीजें हैं उनके अंदर हमेशा जो है कोई नकारात्मक बातें आएंगी जो दूसरे आके उसके अंदर बताएंगे और उसके अंदर त्रुटियां ढूंढेंगे, मगर जो शास्त्रों के अंदर बताया गया उसको एज इट इज। इसके लिए कहा शास्त्रों के अंदर भगवान श्री विष्णु का एक नाम है सिद्धार्थ। सिद्धार्थ का मतलब क्या होता है? जिसने वेदों के अंदर वर्णित जितने भी जो बातें बताई हैं उसको सिद्ध किया, उसको पूर्ण रूप से कंफर्म किया हुआ है। तो श्रील प्रभुपाद भगवद गीता के जो है प्रीफेस के अंदर जब लिखते हैं तो बताते हैं कि हमने सुना है वो एग्जाम्पल अपने काऊ डंग के बारे में, गोबर के बारे में हमने सुना है कि सब जानवरों की विष्ठा अगर शरीर को छू जाए तो हमको नहाना पड़ता है, मगर हम नहाने के बाद में गोबर अपने शरीर पर लगाते हैं अपने शरीर को और ज्यादा शुद्ध करने के लिए। तो वो कंट्रोवर्सी को प्रभुपाद ने कितनी अच्छी तरह से समझाया उन्होंने कि भाई जो शास्त्रों में वर्णित है चीजें वो ऑलरेडी टेस्टिफाइड है, ऑलरेडी जो उसको वेरीफाइड है, उसको सत्यापित किया हुआ है। उसको वापस करने की यू डोंट हैव टू इन्वेंट अ व्हील अगेन। आपको फिर एक जो पहिया है वो पहिया गोल ही होता है, पहिया जो होता है गाड़ी का पहिया या किसी भी चीज के अंदर जो पहिया यूज किया जाता है, व्हील जिसको कहते हैं इंग्लिश में, इट हैज टू बी राउंड, इट यू कैन नॉट मेक अ स्क्वायर व्हील। तो व्हील का तो जो ऑलरेडी इन्वेंटेड व्हील है उसको तुम छोटी या बड़ी साइज में देखो, उसके ऊपर तुम री इन्वेंट व्हील को क्यों करना चाहते हो, उसको व्हील को दूसरे टाइप का क्यों करना चाहते हो, इट्स ऑलरेडी इन्वेंटेड। तो सिमिलरली शास्त्रों के अंदर जो बताया गया है वो पूर्ण रूप से आश्रित है, हमको उससे पर चलना चाहिए। तो यहाँ पर फिर दूसरा एक जो बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट आती है, तो वो कहते हैं कि तात्पर्य के अंदर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर कहा गया कि फेथफुल, मतलब यहाँ पर इफ यू सी द स्टेटमेंट हु आर नॉट ओनली फेथफुल, यहाँ बताए आचार्य जो हमारे वो खाली सिर्फ फेथफुल नहीं है बट दे आर लर्नड। तो ये भी फेथ क्या है, फेथ को समझना हमको बहुत जरूरी है, बिकॉज विदाउट अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज फेथ वी विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द बैकग्राउंड बिहाइंड इट। तो व्हाट इज फेथ? तो आई डोंट बिलीव इन कृष्णा, ऐसी अगर स्टेटमेंट कोई देता है तो हम लोग बोलेंगे पागल है। तो वो वही आदमी क्या कहता है कि आई नो कृष्णा इज गॉड, आई डोंट बिलीव कृष्णा इज गॉड। ये स्टेटमेंट जो है सही है, बिकॉज आई नो कृष्णा इज गॉड, आई डोंट बिलीव कभी भी चेंज हो सकती है, बट आई नो, आई एम फर्म दैट कृष्णा इज गॉड। तो दिस इज व्हाट यू कॉल फेथ। तो फेथ जो है वो दो शब्दों के अंदर से जो है होता है। फेथ के अंदर मतलब होता है एक तो कॉन्फिडेंस कि मैं जिसके अंदर मैं इस व्यक्ति के अंदर मैं आई बिलीव आई हैव फेथ इन हिम, उसका मतलब मेरा पूर्ण रूप से मेरा उसके अंदर कॉन्फिडेंस है, तो उसका मतलब होता है विश्वास। और दूसरा होता है कि फेथ का दूसरा अर्थ होता है ट्रस्ट। ट्रस्ट यानी क्या? पूर्ण रूप से भरोसा, मैं इसके ऊपर पूर्ण रूप से आश्रित हूं। तो ये जब दो चीजें होती हैं, जब आपके अंदर विश्वास जो है, तो इसमें कैसे बताया, किसी व्यक्ति या वस्तु पर विश्वास और भरोसा, इस परिभाषा में दो शब्द हैं, विश्वास और भरोसा, जिसका अर्थ है, विश्वास का अर्थ है कि किसी चीज, व्यक्ति आदि पर पूर्ण निश्चिंतता, और भरोसा का अर्थ है किसी व्यक्ति या वस्तु के ऊपर अखंडता, शक्ति, क्षमता, निश्चितता आदि पर निर्भरता। यानी हम टोटली डिपेंडेंट हैं। ये दो शब्द हैं। जब तक ये हमको भगवान के ऊपर भरोसा या भगवान के ऊपर पूर्ण रूप से विश्वास नहीं होता, तब तक हम भक्ति के अंदर आगे नहीं बढ़ सकते। सो व्हेन द टू थिंग्स, कॉन्फिडेंस एंड ट्रस्ट,
on Krishna comes in mind while serving him, जब भी हम भगवान के कोई किसी भी सेवा भगवान के लिए हम करते हैं, तब हमारे अंदर ये दोनों चीजें होनी चाहिए। वो दोनों चीजें कौन सी हैं? तो आपके ऊपर भगवान के ऊपर पूर्ण रूप से विश्वास, और दूसरा पूर्ण रूप से आश्रित यानी भरोसा, कि मैं इनके ऊपर पूर्ण रूप से भरोसा कर सकता हूँ। तो जब हम फॉर एग्जाम्पल अगर हम ठाकुर जी के पास भोगा ले जाते हैं, तो हमको पूर्ण रूप से विश्वास होना चाहिए कि ये जो भोगा है मैं लॉर्ड को ऑफर कर रहा हूँ, लॉर्ड विल हैव इट। मतलब मैं तो पहले ले जा रहा हूँ, तो ये मेरा विश्वास है कि भगवान खाएंगे। उसके बाद में जब हम प्रसाद लेकर, जब भोगा जो है जो ठाकुर जी ने को हमने अर्पित कर दिया, उसके बाद जब हमने ले लिया, तो ये भरोसा होना चाहिए कि ठाकुर जी ने ये प्रसाद खाया है। ये पूर्ण रूप से आश्रित हमको आश्वासन होना चाहिए कि ठाकुर जी ने ये जो है, ये सिर्फ अभी जो है एक कोई द्रव्य नहीं है, ये अभी पूर्ण रूप से प्रसाद हो चुका है। तो इस प्रकार का जो हमारा, जब ये इसको कहते हैं फेथ। तो शिला प्रभुपाद कहते हैं स्पिरिचुअल मास्टर इज लाइक अ प्रोफेसर। जो गुरु हैं वो कौन है? वो एक प्रोफेसर के मतलब समान है। हम कितना भी शास्त्र पढ़ लें, कितना भी, क्योंकि शास्त्र इतना विस्तार है, इतना विस्तार से है, तो हम वो समझ नहीं पाएंगे, बहुत सारी चीजें हम समझ नहीं पाएंगे, मगर उनको समझाने के लिए हमको एक एक्सपर्ट चाहिए। तो वो प्रोफेसर कौन है? वो प्रोफेसर जो है वो भगवान श्री जो भगवान के जो मतलब शुद्ध भक्त हैं, वो है स्पिरिचुअल मास्टर। तो श्रील प्रभुपाद अपने फेथ के ऊपर बताते हैं कि जिस प्रकार अर्जुन ने बहुत सारे वैदिक जो है स्टेटमेंट्स देकर कृष्ण के साथ में विवाद किया था इसके ऊपर कुरुक्षेत्र युद्ध से पहले, तो तब भी भगवान वहां पर क्या कहते हैं कि मतलब भगवान उसको क्या कहते हैं? अर्जुन को प्रोक्ताम अहम अव्ययम। वो कहते हैं कि भाई जो भी पहले से अथॉरिटीज है, तो मतलब भगवान रेफर कर रहे हैं, जबकि हालांकि भगवान तो पहले से थे, हमेशा से हैं। तो वो यहाँ पर क्या कहते हैं कि प्रोक्ताम अहम अव्ययम, जो पहले से मतलब ऑलरेडी स्पोकन है, जो पहले से जो ज्ञान दिया हुआ है हमको। तो नॉट दैट कृष्णा वाज ऑल्दो ही हिमसेल्फ अहम सर्वस्य प्रभु। हम जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जो हर समय पर थे, मगर वो क्या कहते हैं कि भाई जो पहले से मतलब आचार्यों ने बताया, वहां पर भी भगवान जो पहले के जो शुद्ध भक्त थे या जो एडवांस डिवोटीज थे, उनकी लाइनेज के बारे में भगवान भगवत गीता के अंदर बताते हैं। सो जो वैदिक सिस्टम है वो यही है कि हमको आचार्य और शुद्ध जो भक्त हैं भगवान के, उनके माध्यम से सुनना चाहिए और समझना चाहिए। Now, why was why? Because he has given the Vedas के मतलब भगवान ने तो ऑलरेडी तुमको वेदा दिए हुए हैं, मगर उन वेदों को समझने के लिए जो ज्ञान दिया था वो भगवान ने किसके माध्यम से? जो लाइनेज के अंदर सब जो हैं उनके माध्यम से हमको ये समझना चाहिए। तो इन दिस वे देयर आर थ्री आर ऑलवेज देयर टू गिव अस, जो तीन जो है हमको हमेशा मार्गदर्शन देने के लिए तत्पर रहते हैं। तो वो तीन कौन कौन से हैं? गुरु, साधु और शास्त्र। इसके अंदर से सबसे जो महत्वपूर्ण बात क्या है? वो है शास्त्र। So everything must be guided according to sadhu, shastra and guru, keeping the shastra in the forefront। मतलब वहां पर भी बोलते हैं गुरु, साधु, शास्त्र है, तो भी शास्त्र को हम सबसे पहले महत्ता, बहुत इंपॉर्टेंस देना चाहिए। शास्त्र को हम से फॉलो करना चाहिए, फिर गुरु एंड साधु आते हैं, उनके माध्यम से हमको इसको समझने का प्रयास करना चाहिए। इसलिए शिला प्रभुपाद ने क्या किया? शिला प्रभुपाद ने जो है उधर जाके सीधे से जाके कीर्तन और ये सब शुरू नहीं किया। उन्होंने पहले जो है ये स्टैब्लिश किया कि जितने भी हमारे शास्त्र हैं उनका उन्होंने अनुवाद करना शुरू किया। उन्होंने पहले श्रीमद् भागवतम, भगवत गीता, चैतन्य चरितामृत, ईश्वरोपनिषद, नेक्टर ऑफ डिवोशन, नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन, ये सब बुक्स उन्होंने लिखे। व्हाई? बिकॉज वो शास्त्र हैं एंड बिकॉज बुक्स आर द बेसिक्स। श्रील प्रभुपाद हमेशा कहते थे कि जो शास्त्र हैं वो हमारे आधार हैं। तो गुरु और साधु, उनको भी कभी कोई अगर किसी चीज के को वेरीफाई करना होगा तो डेफिनेटली वो शास्त्र को रेफर करेंगे। इसके लिए बुक्स आर द बेसिक। अभी हम देखते हैं कि भक्ति के अंदर जो ये है, भक्ति कैसे स्टार्ट होती है। तो जैसे पहले फेथ के ऊपर बात चल रही थी, तो हमने बताया फेथ कौन से दो वर्ड्स हैं, मतलब एक तो ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस। तो यहाँ पर भक्ति कैसे शुरू होती है? तो भक्ति भी स्टार्ट होती है श्रद्धा से। तो रूप गोस्वामी जो है अपने भक्ति रसामृत सिंधु के अंदर बताते हैं कि पहला स्टेप होता है फेथ,
यानी पहले श्रद्धा, फिर साधु संग, फिर भजन क्रिया, फिर अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव एंड प्रेम। फाइनली प्रेम के ऊपर आते हैं। तो अब ये फेथ मतलब क्या, उन्होंने इसकी डेफिनेशन तो पढ़ ली कि भाई ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस, ये दो वर्ड से फेथ बनता है। मगर व्हाट इज एग्जैक्टली फेथ? तो फेथ मतलब हमको अपने आजीवन जीवन के अंदर कैसे उसको यूज करना चाहिए, कैसे बताना चाहिए, तो कैसे उसको हम अनुभव कर सकते हैं। तो फेथ की जो पैरामीटर्स हैं, पहले तो ये पैरामीटर ये कि व्हाट एवर इंस्ट्रक्शंस कृष्णा हैज गिवन टू अर्जुना, जो भी इंस्ट्रक्शंस कृष्ण ने, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिए हैं भगवत गीता के अंदर, वो इंस्ट्रक्शंस मेरे लिए, यानी जो उनको पढ़ता है वो मेरे लिए ये फाइनल है और मेरे लिए अल्टीमेटम है और अल्टीमेटली बेनिफिशियल है। तो ये एक फेथ होना चाहिए हमको कि जो इंस्ट्रक्शन भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिए वो मेरे लिए भी अल्टीमेटम है और बेनिफिशियल है। दूसरा इंस्ट्रक्शन, द इंस्ट्रक्शंस गिवन इन भगवत गीता कैन ओनली बी गिवन बाय कृष्णा। जो इंस्ट्रक्शंस, जो हमको उपदेश भगवत गीता के अंदर दिए गए हैं वो केवल भगवान श्री कृष्ण ही दे सकते हैं और कोई ऐसे इंस्ट्रक्शंस नहीं दे सकता। ये दूसरी बात। उसके बाद ये अगर विश्वास आ गया हमारे अंदर, तो इन सच सिचुएशन अगर सपोज हम इस मार्ग पे चलते भी हैं और हम हमारे अकस्मात मृत्यु हो जाती है या तो हमने इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते करते हमारी मृत्यु हो भी गई, तब भी हम भगवान के धाम में जा सकते हैं और इस जीवन के अंदर जन्म मृत्यु के चक्कर से हम बच सकते हैं। ऑल्टरनेटिव डज नॉट एक्सेप्ट कृष्णा एज परमेश्वर। अगर हम भगवान को बोलते हैं भगवत गीता के अंदर बाकी सब तो चीजें, मगर मैं भगवान श्री कृष्ण को नहीं मानता और वो उनको उनकी जो अस्तित्व को नहीं मानता, देन फिर उसका तो कोई उद्धार होना ही नहीं है। तो एग्जाम्पल्स बताते हैं कि रावण और कुंभकर्ण का। ये छोटे से जो दो पॉइंट्स हैं इसको बोल के फिर मैं एक क्लास को यहाँ पर समाप्त करूंगा। तो इसमें दो एग्जाम्पल्स देते हैं, रावण और वाल्मीकि, रावण और इसका अपना कुंभकर्ण का। रावण जो है वाल्मीकि रामायण के अंदर बताया, उसका उल्लेख आता है उत्तराखंड कांड के अंदर, सर्ग संख्या जो है 10 के अंदर आता है। इट्स मेंशन दैट बोथ जो रावण और कुंभकर्ण, उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को रिजेक्ट किया और वो गए जो है अपनी जो तपस्या के लिए। उन्होंने कहा कि हम लोग तपस्या करके हम अपने मृत्यु के ऊपर जो है विजय प्राप्त करेंगे। तो रावण ने क्या किया, ही वेंट टू अ प्लेस कॉल्ड गोकर्ण। गोकर्ण करके एक जगह है इंडिया के अंदर, वहां पर वो गए थे। वहां पर उन्होंने जाके क्या किया, ही डिड द ऑस्टेरिटीज। उन्होंने तपस्या की थी कितनी, 10,000 वर्ष। तो वो क्या करते थे, हर 1,000 वर्ष जैसे ही समाप्त होता था उसकी तपस्या का, तो वो अपना वो दशानन थे, यानी इनके 10 सिर थे, तो एक सर काट के वो यज्ञ के अंदर आहुति में दे देते। ऐसा करते करते उनका 10,000 साल उनके पूरे हुए। तो जब वो 10वां सर काटने गए तो ब्रह्मा जी वहां उपस्थित थे। ब्रह्मा जी ने उनसे कहा कि बेटी के तुम मांगो, तुम क्या वर मांगना चाहते हो। तो सिंस जो है रावण को श्राप मिला था नंदीगण से, जो भगवान श्री शिव जी के जो वाहन हैं नंदी जी, उनसे उनको रावण को जो है श्राप मिला था। उनको श्राप ये मिला था कि भाई तो नंदी से उनको श्राप मिला था। तो उन्होंने क्या किया, जो दशानन ने, उन्होंने कहा ठीक है, उन्होंने क्या वर मांगा कि मैं हमेशा जीवित रहूं। तो उन्होंने बोला नहीं, तुम मतलब अमर का तो वरदान मैं नहीं दे सकता। ब्रह्मा जी ने कहा क्योंकि मेरे पास ही नहीं है तो मैं वो तुमको नहीं दे सकता, तुम और कुछ मांगो। तो उन्होंने कहा ठीक है कि मुझे जो है ना कोई भी अभी वैसे सेम जैसे हिरण्यकश्यप ने मांगा था, वैसे सिमिलर वर जो इसने रावण ने मांगा। रावण ने क्या मांगा कि मैं जब तक जीवित हूं मुझे कोई भी जो है बर्ड्स यानी पंछी, उसके बाद में सर्प नहीं मार सकते, यक्ष नहीं मार सकते, गंधर्वस नहीं मार सकते, दैत्य नहीं मार सकते, दानव नहीं मार सकते, राक्षस नहीं मार सकते, भगवान नहीं मार सकते, डेमीगॉड्स जितनी भी है वो नहीं मार सकते, वुड बी अनेबल टू किल मी। तो रावण डिड नॉट पे द अटेंशन। रावण ने एक चीज जो है उसके ऊपर उसको, क्योंकि वो घमंडी था तो उसको पता था, तो उसने एक चीज पर ध्यान नहीं दिया। वो क्या क्या उसको बोला, ये मनुष्य तो जो है ना वो घास के समान, तिनके के समान है। तो उसने इस लिस्ट के अंदर, जो इसने लिस्ट बनाई थी उसके अंदर उसने जो है मनुष्य का नाम नहीं डाला। उसने क्या कहा, पंछी नहीं मार सकते,
सांप नहीं मार सकते, यक्षा नहीं मार सकते, गंधर्वास नहीं मार सकते, दैत्य नहीं मार सकते, दानव नहीं मार सकते, राक्षसास नहीं मार सकते और डेमिगॉड्स नहीं मुझे मार सकते। तो ठीक है, तो उन्होंने उनका फिर दशानन का मतलब क्या हो गया, उनका हर्ष जो किसने किया, उनका अंत किया भगवान श्री राम ने। तो भगवान श्री राम कैसे आए थे, एक मनुष्य के जो रूप के अंदर, तो उन्होंने उनका के जो अंत किया। और उसके बाद में दूसरा आता है कुंभकर्ण। कुंभकर्ण भी जो था वो रावण का ब्रदर था, मगर वो रावण से उसने कहा था कि भाई तुम ये गलत कर रहे हो, जब तुम सीता जी का अपहरण किया है, तुमने गलत किया है। तो वो इस चीज में वो थोड़ा समझदार था और उसने जो कुंभकर्ण ने रावण को मना कर दिया। तो उसके बाद भी जो है कुंभकर्ण है बहुत सारे उसके पास जो विद्याएं थी, बड़ी साइज हो जाना, छोटा होना, और वो एकदम बहुत भुजंग था, मतलब एक हाथी के समान बड़ा सा उसका शरीर था। और वो चलता था तो ऐसे कितने लोगों को और मतलब जो मनुष्य हैं कितने सारे जो जीवों को ऐसे ही मार डालता, उसके चलने से ही मर जाते थे। तो कुंभकर्ण ने भी जो है तपस्या की, वो भी गोकर्ण गया, वहां पर ब्रह्मा जी की उसने जो है तपस्या की। तपस्या उसने 10,000 वर्ष की। और उसको मांगना क्या था, तो वहां पर उससे पहले ही जब जितने देवता थे वो उन्होंने देख लिया कि कुंभकर्ण तपस्या कर रहा है, तो ये फिर हमारे ऊपर जो प्रहार करेगा और ये पृथ्वी के ऊपर और फिर हाहाकार मचाएगा। तो वो सब जो है देवता जितने भी थे वो माँ सरस्वती के पास गए। माँ सरस्वती को जाके उन्होंने प्रार्थना की कि जब ये कुछ वर मांगेगा तो आप हमारी सहायता करना। एंड सरस्वती माता ने उनको कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। देवताओं को उन्होंने आश्वासन दिया। और जब ब्रह्मा जी जब कुंभकर्ण के सामने उपस्थित हुए तो कहा कि भाई ठीक है, तुम मुझे वर मांगो, तो कुंभकर्ण को क्या कहना था, उनको कहना निर्देवता, उसको निर्देवता कहना था कि भाई मुझे निर्देवता का वरदान दो। निर्देवता का मतलब जितने भी देवता से उनको पूर्ण जो पृथ्वी से जितने भी जहां पर भी वो रहते हैं उनका वहां से खात्मा कर दूं, उनको समाप्त कर दूं। तो जब ये वर मांगने का जब वो कहने गया निर्देवता, तो उस वक्त जो है जो सरस्वती माँ ने आके उनकी जो जुबान है उसको ऊपर अपना प्रभाव डाला। तो उसने क्या मांगा, निद्रावता। निद्रावता का मतलब मुझे सोना चाहिए। तो इस वजह से जो है ब्रह्मा जी ने तुरंत उसको हाँ कर दी। और कुंभकर्ण हमेशा जो 6 महीने 7 महीने तक सोया रहता था, उठ के खाना वाना खाएगा फिर सो जाएगा। तो कहने का अर्थ ये है कि हमको भगवान के ऊपर पूर्ण रूप से विश्वास होना चाहिए। और भगवान के ऊपर पूर्ण रूप से विश्वास हमको जो गुरु के माध्यम से आता है और शास्त्रों के माध्यम से आता है, और हमारा जो बेस है वो शास्त्र होने चाहिए। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम दूंगा। किसी को कोई प्रश्न है, किसी को कोई पॉइंट्स है तो प्लीज ऐड कर सकते हैं। एंड आई एम वेरी सॉरी, मुझे जाना होगा तुरंत, आई हैव सम अर्जेंट वर्क। तो 5 मिनट के लिए आई कैन वेट till I get a call from the guy who's going to come and pick me. Hare Krishna. क्लास था, बहुत सारे अच्छे पॉइंट्स आपने बताए। और ये जो रावण वाला कुंभकर्ण वाला था, इट वाज वेरी वेरी नाइस। सो थैंक यू प्रभु। हरे कृष्णा। क्विकली किसी का कोई प्रश्न है, कोई डाउट्स है तो हम लोग पूछ सकते हैं प्रभु जी से। प्रभु जी को जाना है तो हम लोग प्रभु जी का ज्यादा टाइम। प्रणाम, बहुत ही सुंदर क्लास। एंड आज का जो आपने सिद्धार्थ के बारे में बताया ना, फर्स्ट टाइम सुना मैंने, सो इट वाज वेरी नाइस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिद्धार्थ, जो सिद्ध किया है भगवान ने। तो जस्ट मुझे पूछना था, जैसे आपने कहा कि वी शुड टेक इंस्ट्रक्शन ओनली फ्रॉम लॉर्ड, मतलब अपने जो स्पिरिचुअल मास्टर है, जो वरिष्ठ वैष्णव आचार्य है, दे आर रिप्रेजेंटेटिव, मतलब वी कैन टेक दिस इंस्ट्रक्शन ऑफ द लॉर्ड फ्रॉम देम, मतलब हम लोग तो समझ नहीं पाएंगे। और सो राइट ना प्रभु, जस्ट एक आप प्लीज क्लियर करना। थैंक यू। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु, वंडरफुल क्लास। यू आर म्यूट प्रभु। हरे कृष्णा। Sorry. जो थैंक यू फॉर दिस क्वेश्चन। मतलब एक्चुअली यहाँ पर शिला प्रभुपाद ही, मैं आई जस्ट रीड आउट द शिला प्रभुपाद स्वयं ये कहते हैं कि जो है हु इज द गुरु,
ही इज अ प्रोफेसर। प्रोफेसर जो है वो पूर्ण रूप से उसने जो अध्ययन किया हुआ है पूरे जो आपके सिलेबस का। तो हमारा सिलेबस क्या है? हमारे सिलेबस जो है वो है हमारे ग्रंथ, उनका उन्होंने अध्ययन किया हुआ है। तो जब भी आप प्रोफेसर को कोई प्रश्न पूछोगे तो वो उन्होंने जिस चीज का अध्ययन किया हुआ है उसके अंदर से सार निकाल के आपको आपके जो डाउट्स हैं वो क्लियर करेंगे। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद वो पहले तो ये बताते हैं कि जो गुरु है वो प्रोफेसर है। सेकेंड थिंग वो बताते हैं कि देन ही गिव्स एग्जांपल ऑफ भगवान श्री कृष्ण हिमसेल्फ। मतलब भगवान जो शास्त्रों की ऑथेंटिसिटी के ऊपर कैसे जोर देते हैं कि वो इवन अर्जुन को कहते हैं कि आगे के जो जितने भी थे, मतलब जो ज्ञानी थे, वो उन्होंने वो ये कहते हैं, दैट मीन्स तो जो पहले जो थे, मतलब भगवान श्री कृष्ण आपको डायरेक्टली ये भी इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि यू हैव टू फॉलो द सीनियर्स एंड यू हैव टू फॉलो द स्पिरिचुअल मास्टर्स हु आर इन लाइनेज। तो मतलब जैसे ऋषि का बताया है कि तो उनको फॉलो करना है। अच्छा, ऋषि ये लोग कैसे फॉलो करने, हाउ विल दे गिव यू द इंस्ट्रक्शंस? दे विल गिव द इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम द शास्त्र। सो शास्त्र शुड बी आवर बेसिक्स। एंड इसके लिए शास्त्र फिर क्या है? तो मतलब जब भी पाश्चात्य देश में श्रील प्रभुपाद गए तो उन्होंने वहां पर क्या है, बुक्स आर द बेसिक। मतलब बुक्स, दैट मीन्स द स्पिरिचुअल बुक्स, द आध्यात्मिक बुक्स, दोज आर द बेसिक्स, दोज आर द बेसिक फाउंडेशंस। तो कभी भी हम बोलेंगे कहाँ लिखा हुआ है, हम ये प्रश्न पूछते हैं, कोई भी कुछ डाउट उठता है, अरे कहाँ लिखा हुआ है, ये क्या कोई रूल है क्या, कहाँ लिखा है? तो हम ऐसे बात करते हैं। तो ये भी उसी के लाइनेज में आता है कि हमारे जो पहले जो जब भी किसी के बीच में डिबेट्स होते थे तो दे यूज्ड टू टॉक ऑल। तो शास्त्रार्थ जब होता था तो इन्हीं विषयों पे होता था कि भाई कहाँ लिखा हुआ है, कौन से शास्त्र में लिखा हुआ है। दैट इज वन ऑफ द रीजंस। जब भी हम कोई क्लासेस लेते हैं तो हम बताते हैं भगवद गीता का फलाना अध्याय, इसमें से फलाना श्लोक जो भक्ति रसामृत सिंधु के अंदर से यहाँ से लिया गया है, चैतन्य चरितामृत में यहाँ से लिया। तो दिस मेक्स द ऑथेंटिसिटी कि भाई ये मैं नहीं कह रहा, इट इज द वन व्हिच इज मेंशन्ड देयर इन द शास्त्र। आई होप आई एम क्लियर। हरे कृष्ण। Yes, bro. Yes. Thank you so much, bro. Thank you so much.